Hello students, I'm Sana Musani and today we're gonna learn about commercial correspondence. Chapter 1, Meaning of Communication and its Methods. In this video, you'll learn about communication, what is commercial communication, process of communication, methods of communication. Alright, so let's start with the introduction part. Introduction. Interaction with others or communication is not only an activity consciously undertaken, but also a basic need for every living being. In order to express one's feeling and exchange of ideas, it becomes imperative to come into and remain in contact with others. In this chapter, we shall learn about communication and also the difference between routine communication and commercial communication. We shall logically and chronologically understand the process of communication. We shall also consider in detail different methods of communication that we use and their characteristics and limitations. Communication is an activity to express yourself, to indulge your thoughts into the mind of others. Let me explain you with one example. आपकी सोसाइटी में एक सब्ज़ी बेचने वाला आता है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो सब्ज़ी बेचने वाला है? When that particular person will hoot, जब वो हूटिंग करेगा कि भाई टेक दिस सब्ज़ी फॉर रुपीज़ दिस मच अमाउंट, राइट, या पर केजी इतना है ये सब्ज़ी ले लो, तो दैट्स व्हाट द कम्युनिकेशन इज़. जब कोई इंसान बात करता है तो दैट इज़ व्हाट कम्युनिकेशन. When one person indulges their thoughts or ideas into the mind of others, that's what communication is. Now let me give you one more example. I am teaching you right now. I'm explaining you. So that is what communication. I'm indulging my thoughts into your mind. मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं अपने thoughts आप तक पहुँचा रही हूँ. तो that is what communication. अब कम्युनिकेशन भी दो टाइप का होता है, एक रूटीन कम्युनिकेशन, एक कमर्शियल कम्युनिकेशन. रूटीन कम्युनिकेशन में जो हम डे टू डे लाइफ में इंटरेक्शन करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारे लिए रूटीन कन्वर्सेशन या रूटीन कम्युनिकेशन. लेकिन कमर्शियल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब आप बिज़नेस पर्पस के लिए जब आप किसी से बात करते हो तो दैट इज़ व्हाट कमर्शियल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बाय द वे ऑफ स्पीकिंग. या कुछ लोग होते हैं राइटर्स जो लिख के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट्स ऑल्सो इज़ इंक्लूडेड इन कम्युनिकेशन. यू एक्सप्रेस योर सेल्फ बाय द वे ऑफ स्पीकिंग. आप दूसरों को कैसे बताओगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बाय द वे ऑफ स्पीकिंग. तो दैट इज़ व्हाट ओरल कम्युनिकेशन. बहुत सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आप पढ़ोगे इस चैप्टर में. मेथड्स पढ़ोगे, प्रोसेस पढ़ोगे, तो आप समझ जाओगे कि बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है, कितने टाइप्स की कम्युनिकेशन है, मेथड्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के. गेटिंग इट? अब कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही कम्युनिकेट करते हैं. इवन एनिमल्स डू कम्युनिकेट, इवन बर्ड्स डू कम्युनिकेट, इवन स्मॉल इंसेक्ट्स डू कम्युनिकेट, बट देयर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इज़ डिफरेंट, देयर वे ऑफ इंटरेक्टिंग इज़ डिफरेंट, their way of speaking is different, their way of indulging their thoughts into the other's mind is different. So they all do the communication. So communication is very important. Next is meaning of communication. To indulge our thoughts and ideas into the minds of others. हमारे सोच विचार हम दूसरों तक पहुँचाते हैं. That is what communication is. Just have a look on this picture. What is commercial communication? The process of communication undertaken for commercial purpose is called commercial communication. A businessman has to remain in contact with two different groups, the manufacturer and the seller of the goods from one group and their customers from another group. In order to remain in constant contact, the latter turns out to be an important tool. Both this group acting as the representative or messenger with. Thus, the basic activities of business like purchase, sale, advertising and marketing are carried out through letters. It is called commercial communication. अब जो commercial communication होता है ना, जनरली वो लेटर के थ्रू होता है, यानी कि रिटर्न कम्युनिकेशन होता है.
जनरली प्रेफर बिजनेस लेटर जो होता है वो प्रेफर किया जाता है कि रिटर्न में हो, बिकॉज इट सर्व्स या इट रिप्रेजेंट एज प्रूफ कि आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज प्रूफ कि आपके पास प्रूफ होगा। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में बेसिकली होता है, लेकिन कमर्शियल कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन में भी किया जाता है। लेकिन आपका मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि कमर्शियल कम्युनिकेशन होता क्या है, कि ऐसा कम्युनिकेशन जो बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज़ के रिलेटेड होता है। कम्युनिकेशन जब आप इंटरेक्ट करते हो तो वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के रिलेटेड होता है, तो दैट इज़ व्हाट कमर्शियल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस होती है ना, वो एक स्टेप बाय स्टेप होती है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका स्पीकर, सेंडर और ट्रांसमीटर। सेकेंड है एनकोडिंग, थर्ड है मैसेज, फोर्थ है चैनल या मीडियम, फिफ्थ है डिकोडिंग, सिक्स्थ है लिसनर, सेवन है फीडबैक। ये पूरे स्टेजेस से एक पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस बनता है या कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। ये 7 स्टेप मैं आपको एक ईजी वे में समझा देती हूँ। आई एम टीचिंग यू राइट, लेकिन उससे पहले मुझे वीडियोस बनाने पड़ते होंगे पढ़ाई के रिलेटेड। तो मैं कौन हूँ? सेंडर। जब मैं अपलोड करूँगी तब आपको वो वीडियो मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो मैं कौन हूँ? सेंडर। आई विल सेंड द वीडियो विद इंफॉर्मेशन एंड मैसेज। मैंने जो मेरे जो थॉट्स या मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन बनाया होगा वो मैं आपको सेंड करूँगी, तो आई एम दी सेंडर। एनकोडिंग, मैंने एक लैंग्वेज पर्टिकुलरली यूज़ की होगी, वॉइस यूज़ किया होगा अपना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड्स यूज़ की, एनिमेशन यूज़ किया ताकि वो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में मिले ताकि आप वो समझो। देन इट इज़ मैसेज। क्या सेंड कर रही हूँ मैं? सपोज़ की प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ व्हाट? तो दैट इज़ व्हाट, इट्स अ मैसेज। Then comes channel or medium. What medium I am using? I am using YouTube to send you the video. Decoding में क्या होगा कि आप भी वही सेम प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे, सेम मीडियम, यानी कि आप भी यूट्यूब पे विज़िट करोगे और वीडियो देखोगे। गेटिंग इट? जो मैंने अपलोड किया, जो सेंडर ने अपलोड किया वो आप देखोगे, वो भी यूट्यूब पे ही देखोगे, जहाँ सेंडर ने एनकोड किया था वहीं से हम डिकोड कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ लिसनर और रिसीवर। रिसीवर कौन है? आप, बिकॉज यू आर गोइंग टू वॉच द वीडियो। नेक्स्ट इज़ फीडबैक, कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया नहीं आया, वो क्या होता है? फीडबैक। जब आप किसी को रिव्यूज़ देते हो तो दैट इज़ व्हाट? feedback. Now for your better understanding, I have explained this through the following figure. Just have a look. Here I have marked the numbers. First one is speaker, second is encoding, third is message, fourth is channel, fifth is decoding, sixth is listener, and all this activity is included with feedback. Feedback यानी कि reviews. आपको reviews कैसे मिलते हैं, उसके बेसिस पे आप आगे डिसीजन लेते हो। जनरली कंपनीज़ में ऐसा होता है कि अगर प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छा आया तो ही वो आगे मैन्युफैक्चर होता है, राइट, या तो ही वो आगे मार्केट में सेल होता है। तो बेसिकली इट इज़ डिपेंड अपॉन फीडबैक। अभी एक एग्जांपल दूँ मैं आपको फीडबैक का, तो व्हेन यू आर यूजिंग ऐप, आप कोई भी गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करते हो, आप थोड़ा यूज़ करोगे, उसके बाद आपको रेटिंग्स देने के लिए कहा जाएगा कि 1 to 5 स्टार में रेटिंग करो उसको। तो when you give the stars, that means what? You are giving reviews. Are you getting it? Methods of communication. Different methods use होते हैं communication में। अगर आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बात करोगे, 2 इंडिविजुअल्स बात कर रहे हैं, तो अलग मेथड यूज़ होगा। अगर एक इंसान पूरे ग्रुप से बात कर रहा है तो अलग मेथड यूज़ होगा। एक इंसान अपनी प्लेस से बात कर रहा है, दूसरा इंसान वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, कहीं दूर से वो बात कर रहा है या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका मेथड अलग होगा। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन।
अब एक इंसान ग्रुप से कैसे बात करता है उसका एग्जांपल ले लेता है टीचर। एक टीचर पूरे क्लास को पढ़ा रही है बाय द वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो दैट इज़ द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पर डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व होंगे। अब वो मेथड्स क्या हैं? ओरल कम्युनिकेशन, the communication undertaken by the way of speaking using language words well suited to information or message is known as oral method of communication। जब आप बोल के अपने आप को एक्सप्रेस करते हो तो दैट इज़ व्हाट ओरल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल टॉक, डिस्कशन, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन एक्सेट्रा। Written communication, the communication undertaken by the way of writing using script language well suited to information or message is known as written method of communication। ये कैसा कम्युनिकेशन है? You do this communication by writing well suited information या लैंग्वेज, जैसे कि लेटर लिखते हो आप, तो वो क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया वो रिटर्न कम्युनिकेशन का। आप किसी को लेटर लिखते हो, सपोज़ कि आप छुट्टी रखने वाले हो 2 दिन स्कूल की, तो यू हैव टू राइट दी लेटर एंड यू हैव टू सबमिट इट इन दी ऑफिस, तो दैट इज़ व्हाट रिटर्न कम्युनिकेशन। और रिटर्न कम्युनिकेशन जनरली फॉर्मल लैंग्वेज में किया जाता है। वेल सूटेड वर्ड्स और लैंग्वेज यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो। विजुअल, द कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग और लुकिंग एट साइंस, सिम्बॉल्स, पिक्चर, चार्ट्स और मैप्स एक्सेट्रा। विजुअल यानी कि सिर्फ देख रहे हो आप, विजन सिर्फ आप देख रहे हो, ठीक है। विजुअल को हम विजन भी कह सकते हैं कि सिर्फ आप देख के जो आपका कम्युनिकेशन होता है, यू डोंट स्पीक एनी वर्ड, यू जस्ट विजुअलाइज, यू जस्ट रीड और लुकिंग एट साइन, यू डू दी communication that is known as visual communication। ऑडियो, अब ऑडियो में क्या होता है? यूजिंग लैंग्वेज और वर्ड्स एंड मेकिंग डिफरेंट साउंड्स इवन इफ द स्पीकर एंड लिसनर आर नॉट फेस टू फेस, द ऑडियो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बाय लिसनिंग टू व्हाट दे कन्वे। जैसे कि रेडियो है, टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। आप क्या करते हो उसमें? आपको सामने वाला इंसान को आप देख नहीं सकते, बट स्टिल यू कैन you can hear the voice, so by the voice of that you can communicate, so that is what audio, example of audio communication। audio visual, best example टेलीविज़न। जब आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन इंडल्ज हो रही है टेलीविज़न से, that is when you're watching, you are listening and you are visualizing also, so that is audio visual communication। साइलेंस, जनरली डिफरेंटली एबल्ड लोग होते ना, they use this kind of communication। differently able यानी कि those people who cannot speak या who cannot see, they do this kind of communication। Among various methods of communication, oral and written methods are popularly used। They simplify interaction of thoughts, concept, feeling and information and make formal and commercial communication successful। So that's what it is। Thanks for watching the video। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।